क्या कर रहा है? ओ भाई किसी का ट्रैश कैन गिर गया भाई. The movie's name is Zombie, directed by Nabil Qureshi. Nabil Qureshi's movies have been, I believe, Qaid-e-Azam Zindabad, Actor-in-Law, dude. What a movie. What a movie. One of my favorite Pakistani movies. Lekin Zombies. See, I said Lekin, so there's bad news. Was it good? Was it a good movie? What is a good movie? ठीक है? A good movie is जो आप देखें और आपको मजा आए. You know, मजा? Yeah, मजा is like kinda important. Like that shit's kinda important. क्योंकि why else are you watching a movie if not for maza? Is it for why? What's wrong with you? Because some people are art and all of that jazz, and I'm great. I have a series called The Art Of. I explore art in everything, dude. But movie ka maqsad is so that you have fun, so that you can watch art, to entertain. Was I entertained after watching Zombie? I was not. I was bored. And that is me just being honest. I would, because my friends have worked on this movie. Abdullah was one of the ADs on this movie. And Abdullah was a YouTuber actually. And I remember his vlogs और वो गाना बजता था और Zubia Talpur, she was, I believe, one of the assistant producers. And these people I know. सही है. And I mean, hopefully, inshallah, I get to work with these people. But I can't lie, the structure of the entire story, it's a platformer story structure now. So a platformer story structure is basically where there's a platform and you go from platform A to B to C to D or vice versa. Or basically it's just explored in that one setting. That is the whole world of this movie. एक्चुअली में अबे बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही है. रुक वो कैसे करते हैं. हाँ जल्दी जल्दी. एंड देयर वाज सो मच पोटेंशियल रिगार्डिंग व्हाट कुड हैव बीन with a Pakistani movie that is a zombie movie. What could have been, except for the zombies to not just be, you know, it could have, the zombies could have had character. The zombies did not have character. जब एक एक्टर एक्टिंग बुरी करता है तो आपको लगता है एक्टर की गलती है. जब दो एक्टर्स एक्टिंग बुरी करते हैं तो आपको लगता है दोनों एक्टर्स की गलती है. जब सारे एक्टर्स बुरी एक्टिंग करते हैं तब डायरेक्टर की गलती होती है. क्योंकि डायरेक्शन में वो ही इज लेटिंग थिंग्स गो. ही इज लाइक, यू नो, इट्स ओके, यू नो, पक इट, you know that was good. That was a good take. What was it? It was a good take. I'll let these people go. But Nabil bhai, क्यों Nabil bhai? I love you, Nabil bhai. Actor-in-law. Wow. What a beautiful movie. Nabil bhai, yaar. Nabil bhai, you had diamonds in your hands with a Pakistani zombie movie. You know, there's so much that could have been, but let's stop talking about what could have been, should have been, coulda, shoulda, woulda, बुरा भेड़ चो. नबील भाई यार, I love you. सही है, लेकिन आपने इतनी सारी एक्टिंग नोट्स आपने कैसे नहीं दिया? आप कैसे बस भूल गए कि यार मानी की एक्टिंग अच्छी नहीं थी इसमें? हेल, किसी की भी एक्टिंग अच्छी नहीं थी, स्पेशली बैकग्राउंड एक्टर्स. Background actors often tend to overperform just because the fact that they are background actors and they want to be seen like they are, you know, अगर बैकग्राउंड में है तो कुछ एफर्ट डाल रहे हैं ताकि फिर वो एक दिन मेन कास्ट बन सके. यहाँ तो मेन कास्ट ही अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे थे, बैकग्राउंड एक्टर्स तो कुछ कर ही नहीं रहे थे. वो बोल रहे थे इंग्लिश, और इंग्लिश भी फजूल में. एक तो स्क्रिप्ट में इतनी ज्यादा इंग्लिश पाकिस्तानी मूवीज में क्यों है? हम अभी तक कॉलोनाइज्ड क्यों है अभी तक हम कॉलोनाइज्ड? बताएं. इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश बीच बीच में घुस जाती है उर्दू में. ऑब्वियसली मिक्स जिसे हम कहते हैं. वी एज मॉडर्न डे पाकिस्तानीज, जैसे मैंने अभी अंग्रेजी में बोला, वी से मिक्स, यू नो, इंग्लिश उर्दू दोनों मिक्स. ये एक लफ्ज है, ये एक कॉमन हैबिट है हम लोगों की जो हम कहते हैं. दिस एग्जिस्ट्स, बट इट डज नॉट सीम टू एग्जिस्ट इन दीज स्क्रिप्ट्स बिकॉज ऑफ आई डोंट नो व्हाट. I need to turn my headlights on because it's raining, as the writer didn't imagine the English that was used to be accurate, because the English that was used was not accurate. It was doo-doo. It was, you know what doo-doo is? Doo-doo is shit.
and it was not good. I wish it was, because I was really had expectations for this movie, not high ones. I just had expectations because Nabil Qureshi is the director. उसके अलावा क्या, मुझे सोचने दें, आप जरा मुझे सोचने 2 सेकंड देंगे. 2 सेकंड है, 2 सेकंड भी है. So obviously I'm a little calmer now. Kind of spoiler alert, not really to the story but to the entertainment experience I suppose. एक सीन था जिसमें zombies को जो है ना लाइक डिस्ट्रैक्ट करना था, तो उन्होंने स्पीकर फेंका एक जगह और फिर उसमें जो है ना कुछ गाने लगाने लगे, लेकिन zombies उधर जा नहीं रहे थे. तो उन्होंने क्या किया, स्पीकर पे दिला तीर बजा लगाया और फिर zombies उधर जाने लगे. अब मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे इंटेंशन क्या थी, टू शो दैट, you know, I'm not sure what they were trying to do there, but I hope it's not what I think it is. And what I think it is, the lack of cognizance amongst people as a group when it comes to a certain political party, जिसका गाना बज रहा था. बहरहाल शायद, पता नहीं, हो सकता है. I would love to know what else thoughts there are regarding this. There was an excessive use of English, जैसे इस रिव्यू में भी है. लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि इस रिव्यू में है कि नहीं, ये तो रिव्यू है ना, ऐसे तो मैं बात करता हूँ. तो क्या आपकी आर्गुमेंट ये है कि ज़्यादातर भी लोग ऐसे बात करते हैं? ज़्यादातर लोग डीएचए में ऐसे बात करते हैं. आप फिल्म क्या डीएचए वालों के लिए बना रहे हैं या आप फिल्म पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं? क्योंकि मेजॉरिटी पाकिस्तान डीएचए तो है नहीं ना. क्योंकि मैं अभी डेली लैंग्वेज में तो मैं श्योर इंग्लिश इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन क्यों करता हूँ? क्योंकि कलोनियलिज्म. लेकिन अगर इस चीज़ को हम रिकग्नाइज करके आगे नहीं बढ़ेंगे, पाकिस्तान में से तो ज़्यादा इंडिया में इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन उनकी भी फिल्मों और सीरीज़ में उतनी इंग्लिश नहीं बोली जाती जितनी हमारी ड्रामे मूवीज़ में बोली जाती है मेरे ख्याल से. देखो, इंग्लिश के यूज़ से मुझे मसला नहीं है, इट्स जस्ट द वे इट्स बीइंग यूज्ड वाज सो अननेचुरल. मतलब अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो फिर आप उम्मीद करते हैं कि चलो डायरेक्टर इस राइटिंग को अच्छा कर देगा, और अगर डायरेक्टर भी अच्छा नहीं काम कर रहा तो आप उम्मीद करते हैं तो कम से कम एक्टर अच्छा काम करेगा. लेकिन अगर एक्टर अच्छा काम नहीं कर रहा तो फिर आप ये सोचते हैं कि यार एक एक्टर, क्या वो एक्टर की गलती थी कि वो अच्छा एक्ट नहीं कर रहा है, या डायरेक्टर की गलती थी कि उसने करेक्ट नहीं किया उस एक्टर को कि यार तुम सही नहीं कर रही या कर रहे. इट फेल्ट मोर लाइक एन एक्सपेरिमेंटल मूवी, देखने के लिए कि क्या डिफरेंट जॉनरास चल सकते हैं, और चली माशाल्लाह से. इसने 22 करोड़ अभी तक जो मैंने देखा है 22 करोड़ बना चुकी है. अवाम देखना चाह रही है स्टोरीज, मतलब अवाम तरसी भी है कि यार आप स्टोरीज बनाए, बस हम स्टोरी लेके आए. लेकिन जस्ट बिकॉज अवाम तरसी हुई है इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी दिखा देंगे. सही है, ज़ॉम्बी मूवी है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी ब्लैंडनेस मेरे ख्याल से बहुत अफसोसनाक थी, क्योंकि मेरी उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि नबील कुरैशी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. तो बस वो थोड़ा अफसोस था. जिम में माउंटेन ड्यू क्या कर रही थी? समझ आती है भाई, स्पॉन्सर्स है, मैं भी स्पॉन्सर्स के साथ काम करता हूँ, लेकिन जिम में माउंटेन ड्यू का फ्रिज, जिम में, और माउंटेन ड्यू जीरो भी नहीं है, जिम में माउंटेन ड्यू और जो एक्शन सीन्स थे उसमें कोई जज्बात नहीं थे, उसमें सिर्फ एक्शन था, अननेसेसरी एक्शन था, यूजलेस एक्शन था, एक्शन दैट डिडंट कंट्रीब्यूट टू द स्टोरी, एक्शन फॉर द सेक ऑफ एक्शन. द बेस्ट एक्शन आई हैव सीन टिल डेट इन मूवीज, यू कैंट इवन, मतलब कोई गेस भी नहीं कर सकता कि मैं किसका नाम लेने वाला हूँ. फराह खान की मूवीज में जो एक्शन होता है ना, मेरी आज तक इससे बेहतर एक्शन मैंने नहीं देखा, क्योंकि इतना कैरेक्टर और इतनी रूह होती है उस एक्शन में, इतना डायलॉग और स्टोरी होता है, बिकॉज इट्स सो इंटेंशनली स्टूपिड एंड इंटेंशनली सेल्फ अवेयर. मेरा फेवरेट एक्शन सीक्वेंस फ्रॉम फराह खान टिल डेट इज द एक्शन सीक्वेंस इन हैप्पी न्यू ईयर, जब वो रोहन को लेने जाते हैं क्लब से, और फिर उसके बाद वो बहुत अच्छा सीन होता है. बहरहाल ये एक चीज़ मैंने देखी है कि हमारी मूवीज़ में एक्शन सीन्स, मैंने आज तक कोई भी अच्छा एक्शन सीन नहीं देखा सिवाय मौला जट के. मौला जट वाला तो खैर, वो तो क्या मूवी थी, ओह क्या मूवी थी मौला जट. एंड देन वी हैड उम्रो अयान विच वाज जस्ट एब्सोल्यूट हॉर्स शिट. मैं इस मूवी को दूंगा 4 out of 10. लेकिन आई वुड स्टिल लाइक टू वर्क विद हुएवर वर्कड ऑन दिस मूवी,